Hello, students of class 11th. We are in the chapter Neural Control and Coordination. We have covered central nervous system. Today we will see peripheral nervous system. As you know, peripheral nervous system is composed of 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. Okay? And this peripheral nervous system is divided into two components. One is somatic nervous system. The another one is autonomic nervous system. Autonomic nervous system is further divided into sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Okay, so we will see now the somatic nervous system first. In this, we have seen these pairs of nerves, okay, of which peripheral nervous system is composed of. But peripheral nervous system is divided into two components. So we will see each of them. Okay, students? So I will include a good picture of it. First, we will see somatic nervous system. Okay. See, this somatic nervous system is also called as, because we have control over this somatic nervous system, voluntary control. That is why it is called as voluntary nervous system. It is also called as voluntary nervous system. Okay. And it is part of the peripheral nervous system. Because this is associated with, as it is voluntary, this is associated with the voluntary control of body movements. ओके, जैसे आपका अगर हाथ है तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये वॉलंटरी मूवमेंट है, लेकिन यह मूवमेंट इनवॉलंटरी भी हो सकता है, आपकी इच्छा के बगैर भी. ओके, इन इमरजेंसी यह बॉडी ने व्यवस्था कर रखी है कि जहां पर वॉलंटरी कंट्रोल है वहां पर इनवॉलंटरी कंट्रोल भी होगा अंडर द रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, आपने किसी गर्म चीज को छुआ, तुरंत हाथ हट गया, आपने इच्छा से हाथ नहीं हटाया, खुद ब खुद आपका हाथ हट गया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. ओके, तो स्केलेटल मसल के ऊपर वॉलंटरी भी कंट्रोल है, इनवॉलंटरी कंट्रोल भी है, दोनों. लेकिन जहां पर इनवॉलंटरी कंट्रोल है सिर्फ, वहां पर सिर्फ इनवॉलंटरी कंट्रोल है. ओके, जैसे स्मूथ मसल, वहां पर वॉलंटरी कंट्रोल जीरो, लेकिन स्केलेटल मसल वहां वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों है. ओके.
involuntary associated with voluntary control of body movements, ये तो लिख रही है, via skeletal muscles। तो जो वॉलंटरी कंट्रोल है उसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व। ओके ओके, can you look at can you see this picture? Is it clear to you? Okay, what you are seeing in this picture? I have already explained this to you. There is a precentral gyrus in the cerebral cortex. Okay, it is controlling the motor functions of the movement motor functions। देखे थे रीजन नंबर 3, याद कीजिए। हाँ, साइड में था पतली सी पट्टी। ओके, सो एंड दैट रीजन सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, गायरस एंड सल्की। ओके, उभार और डिप्रेशन। तो प्री सेंट्रल गायरस जो है वहां पर, दैट इज द सेंटर फॉर द लोकोमोशन। ओके, so from there origin of nerve signals happens and that initiates the movement। You can see here। upper motor neurons, somatic motor nuclei of brain stem। ब्रेन स्टेम में सोमैटिक मोटर न्यूक्लियाई है। पहले आया आपके प्री सेंट्रल गायरस रीजन से नर्व सिग्नल, क्योंकि मोटर सिग्नल्स है, वॉलंटरी सिग्नल्स। ओके, आपने इच्छा किया तब हाथ हिलाया, किसी सेंसेशन में तो हाथ नहीं हिला, कोई चुभ गया जैसे कोई चीज, तो उस सेंसेशन के बदले में भी हाथ हटेगा। ठीक है, लेकिन हम अपनी इच्छा से हिला रहे हैं लोको मूवमेंट के लिए, तो इसमें कोई सेंसरी सिग्नल की आवश्यकता तो है नहीं, सिर्फ डायरेक्ट मोटर सिग्नल की जरूरत है। ओके, so that motor signal is originating in that region where the precentral gyrus is located, that I want to say। So if you want to make a flow chart of this, you can make it like this। Precentral gyrus। Okay, it is the location। ये क्या है? It is the location where nerves, where ऐसे लिखिए, where nerve signals, okay, for initiating movement originates। ठीक है ना, इनिशिएटिंग वॉलंटरी मूवमेंट originates, ये वह लोकेशन है। इट इज द लोकेशन वेयर नर्व सिग्नल्स फॉर इनिशिएटिंग वॉलंटरी मूवमेंट originates here in this region। Okay, so I will explain it one by one। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फ्लो चार्ट में, यू सी। बेसिकली पहले तो आप यह समझिए कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ नर्व्स consisting of nerves
which carry afferent nerve fibers which relay sensation from the body to the central nervous system, plus nerves carrying efferent nerve fibers which relay motor commands from CNS to stimulate muscle contraction in skeletal muscle. Not smooth muscle, only skeletal muscle के ऊपर इस नर्वस सिस्टम का कंट्रोल. जहां पर हमारे हम्म 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 जैसे हम कहें ओके डू वन, पीटी करते 1 ऐसे 2 3, ओके तो वो सेंसरी सिग्नल हो गया. ओके वो सेंसरी सिग्नल हो गया एंड दिस इज द मोटर सिग्नल, इसीलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर. और कभी कभी आप क्या करते हो, तो ये बना दोनों से है, सेंसरी नर्व्स भी है, एफेरेंट नर्व फाइबर्स एंड इफेरेंट नर्व फाइबर्स. हम वो जो बात किए थे जिसमें सेंसरी कमांड की जरूरत नहीं है, वो उसमें है कि आप मान लो वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, ठीक है, तो उसमें सेंसरी कमांड की आवश्यकता नहीं है, आप चल रहे हैं. ओके, आप बैठे हुए हो, आप बोल रहे हो. ओके, समझ रहे हो बात को, ये सब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है. जैसे हम आपको कहें कि डिफाइन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो यह हो गया आपके लिए स्टिमुलस. कान में गया वो सेंसरी, वो इंफॉर्मेशन गया आपके ब्रेन तक, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन है. ब्रेन ने प्रोसेस किया कि टीचर ने बोला है डिफाइन सेंसरी सिस्टम, peripheral nervous system, then your brain will collect the information from your memory centers about this. Okay, and it will relay that signal to the brain speech center, and from there brain speech center the motor nerves will intervene, the motor nerves which intervene the vocal cord. It will give the direction to the vocal cords, do vibration like this so that this type of sound emerge out, and the person understands whether you have given the wrong information or right information. फिर हम उसको अपने कान से, कितना हायर फंक्शन हो गया ये, जो आप नॉर्मल बातचीत में, ये कितना हायर फंक्शन है. अदर एनिमल्स कैनॉट डू लाइक दिस.
ओके, फिर हम क्या हुए, हम सुने आपकी बात को, आपने जो बताया वो मेरे लिए सेंसरी हो गया। ठीक है, ऑडिटरी सिग्नल के रूप में ब्रेन तक पहुंचा, उसने एनालाइज किया। ओके, इंटरप्रेट किया स्पीच सेंटर पर, और फिर मेमोरी सेंटर से वो कनेक्ट हुआ कि आप ठीक बोले हो कि गलत बोले हो, कंप्लीट बोले हो कि इनकम्प्लीट बोले हो, अगर इनकम्प्लीट बोले हो तो क्या क्या छूट गया तो नहीं आप बोले, इंपॉर्टेंट चीज, तो सब इंफॉर्मेशन हमारे मेमोरी सेंटर से कलेक्ट करके फिर हमारे वोकल कॉर्ड को मोटर सिग्नल जाएगा, देन आई विल से अकॉर्डिंगली। ओके, तो दिस इज अ हायर फंक्शन, वेरी हायर फंक्शन। यस, देखिए उसका हम लोग के जैसा कैसे ब्रेक हुआ है। हम्म हम्म हम्म। तो समझता थोड़ी है तोता, वो मेमोराइज करता है। उसके ब्रेन का वो सेंटर जो है तोता का, पैरट का, उस पक्षी का, उस स्पीसीज के ब्रेन का, वो मेमोरी सेंटर होगा, लर्निंग सेंटर होगा, वो इवॉल्व है। हुँ? उसका एरिया बड़ा है, वो हाईली वो इवॉल्व है। ओके, सो इट लर्न्स, बट तोता डजेंट अंडरस्टैंड, इट मेमोराइजेस what the person has said. Okay, but tota will not interpret. हाँ, आप उसको कहोगे डिफाइन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो तोता विल नॉट टेल, वो सिर्फ बोलेगा डिफाइन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप जो बोले उसको रट लेगा। कभी कभी दो दोस्तों में चिढ़ाने के लिए होता है ना लड़ाई, जब जो वो बोल रहा है वही वो बोल रहा है, जो बोल रहा है वही बोल रहा है, रिप्लाई बैक, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होता है। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपका सेंसरी नर्व फाइबर्स भी हैं एसोसिएटेड, carrying the afferent nerve fibers and efferent nerve fibers both. तो आप इन पेयर्स ऑफ नर्व फाइबर्स में आप देख लीजिए कि कितने सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं, ओनली सेंसरी, हाउ मेनी। क्रेनियल नर्व से ना स्पाइनल नर्व तो सारा मिक्स्ड है, तो वो जरूरी इस सोमैटिक नर्वस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। जो सेंसरी नर्व फाइबर्स, ऑप्टिक नर्व फाइबर, ओके, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी, ये सब जो सेंसरी वाले हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के भी हिस्सा है। एंड मोटर नर्व फाइबर, ठीक है, विच आर सप्लाइड टू द स्केलेटल मसल, वो मोटर नर्व फाइबर। और स्पाइनल नर्व्स भी ये मिक्स्ड इन नेचर है, यह भी स्केलेटल मसल को सप्लाइड है। ओके, गर्म चीज को छुए, रिफ्लेक्स एक्शन से, अभी हम रिफ्लेक्स पढ़ाएंगे इसके बाद, हाथ अपने आप हट जाता है। ओके, ठीक है, ये इनवॉलंटरी हुई, लेकिन वॉलंटरी भी हो सकता है। वो हल्का गर्म है, आप पकड़े हुए हो, बर्दाश्त किए हुए हो, कंपटीशन लग गया कि कौन कितना देर तक पकड़ के रखता है ये गर्म चीज। तो आप अपनी इच्छा से उसको होल्ड किए हुए हो। ठीक है, तो वहां पर वॉलंटरी एक्शन है। एनीवे, लेट अस मूव अहेड।
तो somatic nervous system is composed of spinal nerves. कितने स्पाइनल नर्व्स हैं? 31 पेयर्स। ठीक है, आप ये मत समझ लेना कि एक्सक्लूसिवली स्पाइनल नर्व सोमैटिक नर्वस सिस्टम में पार्टिसिपेट हो, सिर्फ इसी में, ऐसा भी नहीं है। स्पाइनल नर्व्स पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपैथेटिक के भी पार्ट हैं। आप कॉमन समझ लो कि इस एक स्पाइनल नर्व या तो पैरासिम्पेथेटिक का पार्ट है या सिंपैथेटिक का पार्ट है, लेकिन वह स्पाइनल कॉर्ड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में भी इन्वॉल्व है। ओके, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में है ही है, और वहां पर चॉइस है, पैरासिम्पेथेटिक और इधर सिंपैथेटिक। इज रिकॉर्डिंग ऑन? यस, इट इज ऑन। लाइट चल गया। Okay, I'll explain here. Try to listen it. So it is made up of somatic nervous system. All spinal nerves, spinal nerve pairs are involved in this. These are mixed nerves, which carry sensory information into and motor commands out to spinal cord. Sensory information to spinal cord, and from spinal cord the motor commands are received at the neuromuscular plate. आप देख सकते हैं यहाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ओ हाँ, स्पाइनल कॉर्ड टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। Okay, it is also made up of cranial nerves, some of the cranial nerves. ठीक है, दे ये cranial nerve आप जान ही रहे हो, कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन इनटू एंड आउट ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ लिख दोगे सेंसरी इंफॉर्मेशन इनपुट, इंफॉर्मेशन इसको हम अलग से बना देते हैं, तो थोड़ा बड़ा होगा इसीलिए।
So somatic nervous system is composed of spinal nerves as well as some of the cranial nerves. Okay, so here the sensory information is received in the brain and the motor command from the brain reaches the neuromuscular junction. Okay. तो किस तरह के सेंसरी इंफॉर्मेशंस, जैसे कि आपका स्मेल, इसका सेंसरी इंफॉर्मेशन, आईज, ओके, माउथ, टंग है माउथ के अंदर, टेस्ट का, ईयर से, नेक से, नेक छुएगा तो सेंसरी, स्किन समझ लो, ये स्किन है ना, नेक, शोल्डर, बॉडी का सब पार्ट, सीधा स्किन लिख लो, स्किन। ओके, इन सब एरिया से सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंचा ब्रेन में, कलेक्ट हुआ। ओके, और ब्रेन में यह प्रोसेस होके फिर मोटर कमांड अकॉर्डिंगली उस मसल तक गया। अब देखो, गंदा स्मेल है, मसल तक गया, वहां से भागेगा आदमी। ओके, अब देखिए, इसमें आप फाइंड कीजिए, अगर आपको याद हो क्रेनियल नर्व्स की नंबर वाइज उनका नाम, तो आप लगा सकते हो आइडिया कि कौन कौन सा क्रेनियल नर्व इसमें इन्वॉल्व है। पहला क्रेनियल नर्व का नाम ओल्फैक्टरी था, ओल्फैक्टोरी पहला। ओल्फैक्टरी के बाद ऑप्टिक, दूसरा क्रेनियल नर्व। ऑक्यूलोमोटर तीसरा है, ऑक्यूलोमोटर। ओके, ऑक्यूलोमोटर सेंसरी है या सेंसरी है या मिक्स्ड है, हम भूल रहे हैं। तीसरा, ये दोनों तो प्योरली सेंसरी है, ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक। लेट मी सी इट। आगे लाइट, तो नोट में लिखवाए थे। यस, ये दोनों तो प्योरली सेंसरी है, ओल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक। द थर्ड वन ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर भी तो पूरा सेंसरी है।
नहीं, ओक्यूलोमोटर जो है ये मोटर है, सॉरी। ओक्यूलोमोटर इज, नाम से ही तीसरा का नाम है ओक्यूलोमोटर, ये मोटर है ना? क्या बोले? हाँ हाँ। आई में बहुत सारा नर्व इन्वॉल्व है, आई का मूवमेंट, आई के लेंस का, आई में जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, उसके लिए मोटर्स नर्व्स हैं। ऑप्टिक नर्व आंख में जो इमेज बनाया रेटिना पर, उसको पहुंचाने के लिए सेंसरी नर्व फाइबर है, ऑप्टिक नर्व। लेकिन आई के मूवमेंट के लिए, आई बॉल के मूवमेंट के लिए, लेंस के मूवमेंट कर्वेचर को चेंज होने के लिए सिलियरी मसल्स, ओके, आंख के आई बॉल के मूवमेंट के लिए रेक्टस मसल्स, और भी मसल्स हैं, इन सब के लिए मोटर नर्व्स है, ओक्यूलोमोटर, द थर्ड वन। फोर्थ वन इज ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर ही जो है आपका मोटर ही है, ठीक है। एबडसेंस सिक्स्थ जो है, ओक्यूलोमोटर के बाद पांचवा है ट्राइजेमिनल। यस, ट्राइजेमिनल सेंसरी और मोटर दोनों है। पांचवा मिक्स्ड, मिक्स्ड नर्व है, ठीक है ना। तो सेंसरी है ये फेस से, साइनसेस से, तो ट्राइजेमिनल इन्वॉल्व है इसमें। सेंसरी जितने भी सेंसरी फाइबर्स हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के भी पार्ट हैं। ट्राइजेमिनल, पांचवा क्रेनियल नर्व। छठा है एबडसेंस। एबडसेंस इज आपका मोटर पूरा, ये भी आईज में इन्वॉल्व है, रेक्टस मसल में। छठा के बाद सातवां फेसियल, ये मोटर है। सेवंथ के बाद एट वेस्टिबुलो कोक्लियर सेंसरी है, तो एट इज इन्वॉल्व। वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, इसमें इन्वॉल्व है बैलेंसिंग में, इनर ईयर से। एट वेस्टिबुलर और कोक्लियर, इसमें दो नर्व ब्रांचेज होते हैं। एट के बाद नाइन ग्लोसोफेरेंजियल, सो इट इज मिक्स्ड इन नेचर, it is motor as well as sensory. In sensory nerve fiber, it collects the information from posterior part of the tongue, tonsil, pharynx. So this one is also part of the somatic nervous system, glossopharyngeal. Glossopharyngeal. Glossopharyngeal is the eighth, ninth one, no, ninth one. Now, what is remaining? Eight के बाद ये नाइन्थ हो गया ना, हाँ। नाइन्थ के बाद टेंथ है वेगस। वेगस नर्व, ये मिक्स्ड नर्व है। इस ये सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है हार्ट से, लंग से, ब्रोंकस से, ट्रैकिया से, लैरिंग्स, फेरिंग्स, एक्सटर्नल ईयर, ये सब जगह से करता है। 11th one is accessory. Accessory is motor, so it is not part. And 12th hypoglossal, this one is also motor. So these are those cranial nerves which are involved in the
somatic nervous system. Now you can connect it. Olfactory is involved with smell. आई, द आई की जगह विजन, ये आई का मतलब है विजन से, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन है विजन का। ओके। तो आई से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आया वो ऑप्टिक नर्व से आया। ओके। आईज में मोटर इंफॉर्मेशन जाएगा भी जाएगा। हम्म, आंख के मूवमेंट के लिए, लेंस के कर्वेचर के चेंज होने के लिए, ताकि इमेज का फोकल पॉइंट रेटिना पर बराबर से इमेज बने। माउथ, ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल आपका कहाँ इन्वॉल्व था? फेस से, साइनसेस से। ट्राइजेमिनल को नहीं कर सकते हैं। अच्छा, टेस्ट, ग्लोसोफेरेंजियल, वेस्टिबुलो कोक्लियर, इट इज, एक चीज तो यहाँ लिखे ही नहीं, हियरिंग। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग में भी वेस्टिबुलो कोक्लियर इन्वॉल्व है। ट्राइजेमिनल भी इन्वॉल्व है माउथ में, क्योंकि टिथ है, दांत है ना, दांत की वजह से ट्राइजेमिनल इन्वॉल्व है। वेस्टिबुलोकोक्लर, हियरिंग एंड बैलेंसिंग में। उसके बाद ग्लोसोफेरेंजियल, फिर माउथ में चला गया, नाइन्थ वन। फेरेंजियल मस्कुलेचर में इन्वॉल्व है ग्लोसोफेरेंजियल, इसका मोटर पार्ट, बट द सेंसरी पार्ट इज इन्वॉल्व विथ टंग, टॉन्सिल, फेरिंग्स। तो ये माउथ में हो गया, ये भी इन्वॉल्व। इसको क्लियर बनाना चाहिए थोड़ा, रुको क्लियर कर देते हैं। ट्राइजेमिनल सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है फेस से, टीथ से, साइनसेस से। तो ये भी हो गया माउथ में इन्वॉल्व, ट्राइजेमिनल पूरा का पूरा। और चूंकि फेस से इन्वॉल्व है, तो ट्राइजेमिनल स्किन में भी इन्वॉल्व है। ठीक। अब वेस्टिबुलो कोक्लियर, ये हो गया हियरिंग, बैलेंसिंग। Now glossopharyngeal. Glossopharyngeal is involved with the tongue, okay, tonsil and pharynx. So, hmm? हाँ, टंग में है तो टेस्ट में इन्वॉल्व है, साथ ही साथ माउथ में भी इन्वॉल्व है ये। टॉन्स माउथ में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि
फेरिंग्स के साथ ये एसोसिएटेड है, तो माउथ के बाद फेरिंग्स आता है। अच्छा रहने दो, टेस्ट में ही रहने दो, ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते। ठीक है। फिर ये था वैगस। वैगस का सेंसरी इंफॉर्मेशन हार्ट, लंग, ब्रोंकाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, तो इसको रहने दो। तो दो सेंसरी इंफॉर्मेशंस, उस सेंसरी इंफॉर्मेशन की वजह से इनवॉलंटरी मोटर फंक्शंस होते हैं, तो वैगस नर्व को निकाल दे दो इससे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। 3 2 5, 5 ही याद रखो आप अपने लिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये ईयर तो यहाँ लिखे ही थे, इसको मिटा दिए। कोई रह गया इसमें? ये हो गए क्रेनियल नर्व्स। अब ये स्किन के साथ स्पाइनल नर्व सब एसोसिएटेड है, उनके ब्रांचेज। लेकिन स्किन के साथ ट्राइजेमिनल और वेस्टि आपका ट्राइजेमिनल एसोसिएटेड है, क्रेनियल नर्व नेक रीजन से। तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है, गर्दन से, तो यहाँ इसके नीचे स्किन का पार्ट से स्पाइनल नर्व्स आर एसोसिएटेड, एंड above it the face, इसमें ट्राइजेमिनल एसोसिएटेड। समझ में आ रहा है? अब आगे चलो। इस सोमैटिक नर्वस सिस्टम का हम लोग कंपोजिशन देख लिए। नाउ कमिंग टू इट्स फंक्शन, व्हाट इट डज। You already know it. It is involved in the, इसमें यस यस, सब ये फंक्शन। हाँ हाँ हाँ, सही है, फंक्शन ही है सर। ये सब फंक्शन है, ये भी आप लिख लो। हम लिस्ट आउट कर देते हैं फंक्शंस को। फंक्शंस, इट कंट्रोल्स ऑल वॉलंटरी मस्कुलर systems within the body। बॉडी में जहां जहां भी वॉलंटरी मस्कुलर सिस्टम है, यानी स्केलेटल मसल एसोसिएटेड विथ न्यूरो मस्कुलर प्लेट, तो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। दिस ऑल्सो controls the process of voluntary reflex arcs। ये रिफ्लेक्स आर्क नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे, आर्क्स। इसका रूट, सिग्नल फ्लो का रूट क्या है, बेसिक रूट इसका वो पढ़ेंगे, देख लीजिए। नर्व सिग्नल्स विद इन द इफरेंट सोमैटिक नर्वस सिस्टम।
ओके। सो ये सोम इफरेंट यानी सेंसरी नर्व फाइबर से एक सीक्वेंस में शुरू होता है। ओके। सी इफरेंट यानी मोटर। ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ इसको मिटा देते हैं पहले। It starts with upper cell bodies. न्यूरॉन्स का जो सेल बॉडी था, ये अपर सेल बॉडी कॉर्टेक्स में सेल बॉडी है। कहाँ के कॉर्टेक्स में? वो प्री सेंट्रल गायरस जो था, रीजन नंबर 3, उस पिक्चर में याद कीजिए, येलो कलर का जो था, जो लोकोमोटरी सेंटर था, है वहां पर जो सेल बॉडीज हैं, अपर सेल बॉडीज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, इसके मोटर न्यूरॉन्स के अपर सेल बॉडीज। सॉरी, कहां पर है? हम्म ये है प्री सेंट्रल गायरस में। गायरस, यहाँ पर जो कॉर्टेक्स है, जो ग्रे मैटर है, उसमें जो ये सेल बॉडीज है। ओके। फ्रॉम हियर द इंफॉर्मेशन द सिग्नल कम्स टू from these upper motor neurons down to the corticospinal tract. Track. To corticospinal tract से ये फिर पहले बना लेते हैं, फिर बाद में आपको समझा देंगे। लोअर मोटर न्यूरॉन्स में आया। These are also called as alpha motor neurons. ये कहां पर है? ये है ब्रेन स्टेम में। Can you see here the blue color dot in the brain stem in this picture? Upper motor neurons. ब्रेन स्टेम में देखो, अभी क्लियर हो जाएगा कहां पर है ये। हम्म, ऊपर में पोन्स है, सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लोंगाटा है। पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन हो गया। तो मिड ब्रेन में डेफिनेटली ये नहीं है।
ये हाइंड ब्रेन में ही है। शायद पॉन्स में होगा, पॉन्स में होगा ये। एनीवे देखो, लेट अस सी। अपर मोटर न्यूरॉन से आया सोमैटिक मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द ब्रेन स्टेम, लोअर मोटर न्यूरॉन्स में। एंड दिस इज कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो है आपका, ये है। क्या कह रहे हैं? द नर्व सिग्नल्स फ्रॉम द प्री सेंट्रल गायरस, ओके, and they are located upper cell bodies of the motor neurons. From there, the nerve signals is coming. The stimulus is originating here in the precentral gyrus, and it is getting transmitted from this upper motor neurons down the corticospinal tract. अपर मोटर न्यूरॉन से ये गया corticospinal tract में, and to the lower motor neurons in the brain stem and ventral horn of the spinal cord. Okay, that one is not shown here. Yes, here. So it is from this corticospinal tract से फिर ये ventral horn में गया spinal cord पे। Okay? अब देखिए इसको आप बना सकते हैं उस तरह से। corticospinal tract यहाँ से मोटर न्यूरॉन से गया, और यहाँ से जाएगा सिग्नल, जा सकता है सिग्नल टू द लोअर मोटर न्यूरॉन्स इन द ब्रेन स्टेम, ये तो चला गया टू द लोअर मोटर, यहाँ पर लोअर मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन स्टेम के अंदर। एंड फ्रॉम हियर the signal goes to ventral horn of the spinal cord. See here, lower motor neurons. Okay. फिर उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन्स वेंट्रल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से, ये भी लोअर मोटर न्यूरॉन कहलाएगा। दिस इज अपर मोटर न्यूरॉन। एक ट्रैक तो है अपर मोटर न्यूरॉन, सोमैटिक मोटर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम, देन लोअर मोटर न्यूरॉन। सी अपर मोटर न्यूरॉन से उसका जो एक्सॉन है वह गया सोमैटिक मोटर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द ब्रेन, यहां पर बना दो सोमैटिक
लोअर मोटर न्यूरॉन्स, इसके एक्सॉन्स हैं सप्लाइड। तो हमको दो चीज यहाँ लिखना जरूरी है, न्यूक्लियाई, तभी पता चलेगा सेल बॉडीज। तो यहाँ पर है आपका न्यूक्लियाई, ये अपर सेल बॉडीज, सेल बॉडी से समझ गए न्यूक्लियाई। पहले इस ट्रैक को क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर सेल बॉडीज हैं, उसके एक्सॉन्स इंटरवेन किए हैं। न्यूक्लियाई द सेल बॉडीज प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम हियर। ओके, ये नर्व फाइबर हो गया, और ये व्हाइट मैटर में गया है ना, कोर्टेक्स में सेल बॉडीज है, व्हाइट मैटर में एक्सोन गया, ब्रेन स्टेम में एक सेल बॉडीज का कलेक्शन, वो न्यूक्लियाई है, सेंटर है मोटर्स न्यूरॉन्स का। वह एक्सोन यहाँ पर सेल बॉडीज में इंटरवेन हुआ, तो पाथवे ऐसा हो गया मोटर न्यूरॉन सेल बॉडीज से, और यहाँ पर हो गया मोटर एक्सॉन्स। दिस मोटर एक्सॉन इज प्रेजेंट इन ब्रेन। इसको मिटा के अच्छे से बना, मोटर एक्सॉन्स, ये प्रेजेंट है व्हाइट मैटर। फिर सिग्नल आया सोमैटिक मोटर न्यूक्लियाई, ये एक्सॉन इसी सेल का हिस्सा थे। सोमैटिक मोटर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ब्रेन स्टेम, ये प्रेजेंट है ब्रेन स्टेम में। तो ये हो गया सेल बॉडी। इस सेल बॉडी का फिर एक्सॉन लटकेगा, ये एक्सॉन्स की लंबाई है जो मोटर जंक्शन न्यूरोमोटर जंक्शन तक सप्लाइड है। ओके, तो ये हो गए आपके मोटर एक्सॉन्स। एक्सॉन्स तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अप, अपर की लोअर, लोअर। तो एक्सॉन कहने के बजाय एक्सॉन न्यूरॉन का ही पार्ट है, सो इट इज लोअर मोटर न्यूरॉन। ये हो गया अपर मोटर। मोटर एक्सॉन्स है या इसको न्यूरॉन्स है। तो दिस वन इज हियर, दिस इज ही दिस वन, ये है लोअर मोटर न्यूरॉन, दिस वन। फिर यहाँ पर हो गया न्यूरोमस्कुलर प्लेट, सिग्नल ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो एक तो ये रूट है बेसिक रूट, and another one is this one through spinal cord. Okay? तो ये हो गया, आप अनुमान लगा लीजिए, ये नजदीक वाला जो रूट है, ये फेशियल हो गया, चेहरा का एक्सप्रेशन वगैरह को क्रेनियल नर्व से ये एसोसिएटेड है। ये क्रेनियल नर्व भी हो गया ना, कौन सा, ट्राइजेमिनल वाला, ट्राइजेमिनल ही है ना, ट्राइजेमिनल हो गया। और बॉडी के बाकी सेगमेंट से बिलो दिस हेड स्पाइनल कॉर्ड इज एसोसिएटेड, उसका ट्रैक है लोकोमोटरी सेंटर, लोकोमोटरी रीजन जो है प्री सेंट्रल गायरस में, उसके दूसरे लोकेशन पर, उसी लोकेशन में नहीं, ओरिजिन जो है उसमें दूसरा सेंटर से ओरिजिनेट हुआ है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक,
सेल बॉडीज यहाँ पर है, उसके एक्सॉन्स पूरा लंबे हैं, इतने लंबे हैं। यहाँ पर एक्सॉन इतना लंबा था, यहाँ एक्सॉन देखिए बहुत लंबा है। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक में ये एक्सॉन्स है। किसके एक्सॉन्स हैं? एक्सॉन्स है। इसको हम क्या कह सकते हैं? अपर मोटर न्यूरॉन्स कह सकते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन ऑफ द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। एंड दिस कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, इसको आप, यही है। ये स्पाइनल नर्व के रूप में निकला स्पाइनल कॉर्ड से। जिस सेगमेंट में वह सेंसेशन जाना होगा उस स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा ये। हाथ हिलाना है तो ऊपर वाले से निकलेगा, पैर करना है तो नीचे वाला स्पाइनल नर्व से निकलेगा सिग्नल। So from here it goes to the ventral horn of the spinal cord. See, this one is the ventral horn. ठीक है, तो ये अभी तक चल रहा है अपर अपर मोटर न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर अपर मोटर न्यूरॉन जंक्शन है, मीट किया, इसका एक्सॉन एंड हुआ। ठीक है, एंड दिस वन सोमैटिक मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। किसका? ये एक्सॉन यहीं से चल रहा है पूरा लंबाई में। यहाँ पर न्यूक्लियाई है, देखिए स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो यहाँ पर एक्सॉन छोटा है, सेल बॉडीज कोर्टेक्स में है, एक्सॉन इतना बड़ा है, पूरे ब्रेन के मेडुला रीजन को क्रॉस करके आया। ठीक है, पॉन्स रीजन के लगभग में ये ग्रे मैटर हो गया यहाँ पर। सेल बॉडीज है। ओके, यहाँ भी सेल बॉडीज है, ग्रे मैटर है। सेल बॉडीज से एक्सॉन यहाँ तक पहुंचा, ये वाले रूट में जो फेशियल स्केलेटल मसल्स जहाँ इन्वॉल्व है। और इस जंक्शन के बाद जहाँ न्यूक्लियाई है तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स, इसमें देखिएगा कि एक्सॉन्स आर एक्सटेंडिंग। प्री सेंट्रल गायरस से ही यह एक्सॉन चल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को पूरा ट्रेवल कर रहा है। ठीक, बहुत सारे सेल बॉडीज हैं, कुछ सेल बॉडीज का एक्सॉन इतना लंबा है, कुछ सेल बॉडीज का एक्सॉन इतना है, इतना 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 इतना। डिफरेंट डिफरेंट सेल बॉडीज के एक्सॉन्स डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स में निकल रहे हैं, इफेरेंट है डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। कोई एक का ही पूरा ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है ना, 31 है ना, मान लो यहाँ पर काउंटिंग तो नहीं कर सकते, 31,000 न्यूरॉन्स। तो 1,000 इधर, फिर 1,000 इधर, 1,000 इधर, 1,000 इधर, सबका एक जोन। 31,000 है तो 500 इधर, 500 इधर, दोनों साइड पेयर में। हम एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको। तो ये है, ऐसा नहीं कि 31,000 है तो पूरा 31,000 इधर भी सप्लाइड है, इधर भी सप्लाइड है, इधर भी उसका ब्रांच है। नो, एक जोन का ब्रांचिंग नहीं है, नहीं तो सिग्नल डिफ्यूज हो जाएगा, फंक्शन खराब हो जाएगा। एक जोन सिंगल है, और वह एक जोन मीट किया यहाँ पर सेल बॉडी ग्रे मैटर में। स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर अंदर में है, यहाँ पर सोमैटिक मोटर न्यूक्लियाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हियर सोमैटिक मोटर न्यूक्लियाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा सिग्नल। यहाँ सेल बॉडीज हो गए, अब इन सेल बॉडीज से फिर एक्सॉन्स निकले, और वो एक्सॉन्स है लोअर मोटर न्यूरॉन्स यहाँ पर। ठीक है, लोटर
लोअर मोटर न्यूरॉन से न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यहां से भी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब यह न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बॉडी के जिस जिस पार्ट पे है वहां वहां पे स्केलेटल मसल को ये कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। समझ रहे हो बात को? ओके। अपर मोटर न्यूरॉन्स जो है वह एक तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन्स कहां पर रिलीज किया? यहाँ, जब वह न्यूक्लियाई में एंटर कर रहा है। दो न्यूक्लियाई है, ब्रेन स्टेम में एक न्यूक्लियाई है, एक स्पाइनल कॉर्ड में। तो इस जगह पर दे रिलीजेज ए न्यूरो ट्रांसमीटर कॉल्ड ग्लूटामेट। और वह लोअर मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो यू सी अपर मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन से जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जंक्शन है लोअर मोटर न्यूरॉन में कनेक्शन है अपर मोटर न्यूरॉन से। ओके। यह जो सेल बॉडी है यहाँ पर ब्रेन स्टेम में स्पाइनल कॉर्ड में, वह भी लोअर मोटर न्यूरॉन का ही हिस्सा है ना। अपर मोटर न्यूरॉन का हिस्सा अपर मोटर न्यूरॉन सेल बॉडी, अपर मोटर न्यूरॉन एक्सॉन, दिस वन द ट्रैक, एंड देन लोअर मोटर न्यूरॉन सेल बॉडी, देन लोअर मोटर न्यूरॉन एक्सॉन। तो ये हो गया अपर मोटर न्यूरॉन एक्सॉन से कनेक्टेड है लोअर मोटर न्यूरॉन का सेल बॉडी। सिग्नल इज ट्रांसफॉर्मिंग लाइक दिस। ओके। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम दिस रीजन, न्यूरॉन्स में तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में फ्लो हो रहा है सेल में। लेकिन इस जंक्शन पर सिग्नल ट्रांसफॉर्म हो रहा है बीच में केमिकल मीडिएटर के द्वारा। सी हियर, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप है, तार मान लो कटा हुआ है, गैप है, तो उसमें सिग्नल के बीच में केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ओके। सो दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज, दिस केमिकल हियर इज ग्लूटामेट। तो कहां पर ग्लूटामेट रिलीज हो रहा है इस फिगर में? अब आप समझ जाइएगा। यहां पर रिलीज हो रहा है, हियर ऑल्सो इट इज गेटिंग रिलीज्ड। ओके। एक और न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है लोअर मोटर न्यूरॉन जो इंटरवेन किए हुए हैं स्केलेटल मसल देयर एट द न्यूरो मस्कुलर प्लेट। दो न्यूरॉन्स के बीच में यहाँ पर ग्लूटामेट रिलीज हो रहा है एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर बिटवीन अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन।
लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन से फिर सिग्नल जा रहा है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर। इस फ्लो चार्ट में भी आप बना सकते हो इसको। सी कहाँ कहाँ पर रिलीज हो रहा है कॉर्टिकोइड, एसिटाइल कोलिन, मोटर न्यूरॉन। यहाँ पर रिलीज हुआ सोमैटिक मोटर न्यूक्लियाई में सिग्नल जाने से पहले। यहाँ पर वेंट्रल हॉर्न में एंटर किया, स्पाइनल कॉर्ड में एक्सॉन। वेंट्रल हॉर्न में एंटर करने के बाद सोमैटिक मोटर न्यूक्लियाई के पास जाके एंड हो गया, और वहीं पर ग्लूटामेट रिलीज हुआ यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर, और फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। एसिटाइल कोलिन के रिलीज के बाद स्केलेटल मसल्स के साथ एक्शन पोटेंशियल चेंज हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, सार्कोलेमा पर। फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्शन पोटेंशियल चेंज हो गया, और उससे कैल्शियम आयन रिलीज हो जाता है। यहाँ पर मोटर एक्सॉन इस रूट में, तो छोटा वाला रूट था फॉर फेशियल, you can make it out where the glutamate is getting released here, glutamate, and acetylcholine here, and here, because of the acetylcholine released at the neuromuscular junction, muscle contraction happens. Yes, you know, कैसा बोल मसल कॉन्ट्रैक्शन, वॉलंटरी। मोटा मोटी समझ गए वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार से होता है। ओके, रिफ्लेक्स आर्क हम सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे इसके बाद। तो टुडे टाइम हो गया, 8 बज गया, so we are ending the class now.